don'ts. Today we will discuss about best practices that one should follow if anyone is working in Cucumber. The idea behind choosing this topic is that, as everyone knows, that recently many of our Confis team has started working with Cucumber, and they have integrated Cucumber framework in their automation scripts. So they should know about what are the best practices that they should follow before just writing test cases blindly in the feature file. So that was the idea behind choosing this topic. I hope this would be beneficial for you in your automation scripts. So let's move to the agenda. Today we will first discuss about testing levels. I will give high level overview here, and then we will discuss that where Cucumber best fit in the testing levels, at which level Cucumber best fit in. Then later we will move on the Cucumber best practices, that what you need to do and what you avoid while writing your test cases in the Cucumber. And these all are the best practices that we will see, keywords, background, and in the end there we will discuss about the general best practices that we should keep in mind while writing our automation scripts. So this is the overall agenda that we are going to discuss in the slides. So first of all, we will discuss about testing levels. As everyone knows that recently in Carnival, we have already discussed testing types in details. That's why I have added simple testing levels here, so that we can just take overview of each testing level to know about its these levels where Cucumber best fit in. So there are 4 types of levels. First one is unit test, then integration test, system test, and acceptance test. The unit test normally maybe you all of you are familiar with that. In this scope, we will only test simple unit or a function, and later then we have an integration test. In integration test, once we integrated all the components together, we will test those components and confirm all the things that is it working fine or not. Then we have a system test. System test is having more you can say functional and non-functional requirements. For example, we not only test the components in here, we also do performance testing, security testing to see our overall whole system. Then we have acceptance test. Acceptance test normally जो होता है वो client के client के environment में होता है, और client normally validate this acceptance test. So these are basically based on the client environment. Now we will see where Cucumber lie in all of these levels, and any guess anyone can answer that where Cucumber best fit in which level. Anyone? Just a guess. We will guess. Acceptance level पे. So once that activity is initiated, what is going to happen? The completion cost is. Acceptance level पे. Sorry सुमैया, आपकी आवाज नहीं मुझे क्लियर आई. क्योंकि acceptance level testing पे होता है Cucumber use. Acceptance testing, right? We have you can say acceptance testing पे भी होता है. You are मतलब perfectly fine and your answer is right. But overall अगर आप देखें ना एक larger scope में, Cucumber एक framework है जो कि हम even unit test, integration test हर level पे use कर सकते हैं. पर integration testing और end-to-end testing में क्यों होता है? By integration testing I mean it can use in system testing, it can use in you can say acceptance testing or end-to-end testing. But why not in unit test? Because in unit test when you try to maintain all the feature files,
जो सारे यूनिट टेस्ट होते हैं ना, वो सारे डेव इन्वायरमेंट, लाइक यू कैन से डेवलपर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनको कोई सिनेरियो से कोई वो नहीं होता कि अगर आप उसको मेंटेन भी कर ले बीडीडी के अंदर तो वो जस्ट कॉस्ट इंक्रीज करते हैं उस चीज़ की, वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं करते। तो इस वजह से अवॉइड किया जाता है कि कुकम्बर को सिर्फ इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूज़ किया जाए, क्योंकि why? Because it maintains the documents and it keep up to date the whole document that test cases all its requirement test cases normally जो क्या कहते हैं फीचर फाइल्स ऑलरेडी जो हम मेंटेन करते हैं वो क्यों की जाती हैं, बेसिकली एंड यूजर्स बीए क्यूएज और ऐसी सब सेम लेवल पे आ जाए उस चीज़ के लिए, ठीक है। और why it is beneficial in integration testing, वो इसलिए कि once we log all the requirements in feature files, तो उसके बाद कम से कम चांसेस होते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में रिक्वायरमेंट चेंज भी हो जाती हैं तो वो बहुत मिनिमल लेवल पे होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, या न्यू फीचर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, क्योंकि ये वाली फाइल्स जो होती हैं कुकम्बर की वो ऑलरेडी सबको एक्सेसिबल होती हैं, हर कोई अपना फीडबैक दे रहा होता है। इसीलिए मेजरली जो कहते हैं इस चीज़ को कि you should write your feature files in business term, not in your coding term के मतलब आप आम जो डेली लाइफ में प्रोजेक्ट रिलेटेड डिस्कशन करते हैं वो बिजनेस टर्म में होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हों कि जो कि यू कैन से किसी लेमैन को भी ना समझ आए। नॉर्मली फीचर फाइल राइटिंग इस तरह से की जाती है। और why it is important that it forces you to document your automated test cases before implementation, ये already मैंने इसके अंदर रिपीट कर दिया, that's why it is important। लेकिन मेन पर्पस जो है ये जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में यूज हो सकता है, बट यूनिट टेस्टिंग के लिए यू हैव टू यूज JUnit Mockito बिकॉज ये कॉस्ट इंक्रीज करता है, अदरवाइज इसका कोई उसके अंदर रोल प्ले नहीं करता। Overall, recently, I think Rizwan has delivered session in a community meeting regarding TDD and BDD. उस related एक high level, क्योंकि this is company wide session, so I thought कि we should just show the high level overview of what is BDD and TDD and why it is important before moving on the Cucumber do's and don'ts. So I'm going to play a video and so you can understand that. Sorry, let me share the device. It is already shared. What is behavior-driven development? Test-driven development is the process of using examples to guide the development of each function of your software. In TDD, you create your program by working through a loop like this. Write an example as a simple test, watch the test fail, write code to make the test pass, refactor and clean your code. So what is behavior-driven development? BDD is somewhat similar and complementary to TDD. However, where TDD focuses on driving the development of individual functions in the code, behavior-driven development applies a similar process at the level of features. Since features are driven by user needs, and most users are going to express themselves in natural language rather than the language of code, BDD starts with a natural language to create examples. To make the examples executable, BDD requires a little bit of structure, and this structure allows a bridge between the world of programming and the world of natural language requirements. A BDD feature file consists of one or more scenarios. These scenarios are just examples of how the application should behave from the standpoint of the user. For example, you might have a scenario that says, given I am on the login page, when I attempt to log in with valid credentials, then I am shown the application dashboard. And another scenario that says, given I'm on the login page, when I attempt to log in with invalid credentials, then I'm shown a login error message. These examples are written in English, but they are still very structured. The given portion tells the starting condition for the example. The when line tells what you actually do, and the then tells what results are expected. Behind the scenes, your BDD framework will match this natural language to the code that developers write to actually do those steps, but it's always driven by the natural language. The feature files then become documentation of the application, but unlike most documentation, they get executed against your program. If this documentation ever gets out of date, then something will break in your testing stage.
Any change made to the software gets verified by every example that was created in this process of documenting the requirements as executable specifications. None of this is magic. It's a lot of hard work and requires a lot of discipline across the team, but the results can be amazing. Not only does BDD streamline the requirements process, but it brings the value of QA to the beginning of development. One BDD project I coached involved a complete replacement of a very important legacy mainframe system. The system went live a year early and at 1/3 the cost of what had been estimated using their traditional development method. The ability to execute every requirement against the application let the team regularly deploy new changes in days that normally would have taken 6 months. The business owners identified a small change that would let the application make more money. The change was made in a few hours, but under the old process, it would have taken 6 months to make sure there were no side effects and that it was safe to deploy. Because of the investment in BDD, the change was put into production almost immediately, fully tested and with complete confidence. BDD cut out 6 months where that change would not have been producing any value. For this single change, behavior-driven development resulted in a savings of $5 million that would have been simply lost under their old process. So this was a video. It was about the behavior-driven development and why it is important. Later, we will move on the Cucumber do's and don'ts and discuss about best practices that we should follow in Cucumber. So the first, you can say topic in best practice, Cucumber best practices is that keywords, using of keywords. Normally क्या होता है कि when you are writing your feature files in Gherkin language, we just started using given, when and then only. अब हमारे जो scenarios होते हैं वो given, when, then के around ही घूमते रहते हैं. Even no one knows कि वो कितनी hassle बाद में create करता है कि अगर आपके scenarios जो हैं वो given, when, then में ही just move करते रहे और किसी ने and और but use ना किया हो उसके अंदर. So first step is we should always use and but in your scenarios to keep it structured and उसकी reason क्या है? Reason ये है कि एक तो ये readability improve करता है, secondly already standard follow करता है जो कि Cucumber देता है. ठीक है, I will just go through all of these quickly क्योंकि already क्या कहते हैं वीडियो के अंदर भी उन्होंने explain किया हुआ था कि गिवन जो नॉर्मली होती है वो प्री कंडीशन होती है और सेटअप होती है, ये हमेशा फर्स्ट स्टेप पे आती है. ठीक है, व्हेन एनी एक्शन दैट यू परफॉर्म इज कम्स इन द व्हेन and in then any assertions that you applied on your test cases comes under then. And और but जो होता है normally जो होता है वो बहुत rare use होता है, लेकिन and है बहुत ज़्यादा frequently use होता है आपके test cases के अंदर. These are just wild cards जो कि आपको कह लें कि एक सिनेरियो को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए एक पूरी ओवरऑल फैसिलिटी देता है. अदरवाइज आप अपना काम जो है गिवन व्हेन देन के साथ भी कर सकते हैं. आई विल शो यू एग्जांपल हियर किस तरह से. फर्स्ट एग्जांपल जो है ना विदाउट यू कैन से विदाउट एंड और बट के साथ क्या कहते हैं शो की गई है. इसके अंदर फॉर एग्जांपल द सिनेरियो इज सेइंग शो एरर मैसेज व्हेन यूजर ट्राई टू क्रिएट यूजर विदाउट ईमेल. So here given I have logged in, I have access to the create user page, then again he has used given, I am on create new user page, and then he has used 3 times when I do not fill the email, when I insert all the other information, when I click on the save button, then I should see an error message. अगर आप इसको देखें तो फर्स्ट टाइम इसको रीड करने में आपको टाइम लगता है, इसको देखने में टाइम लगता है कि अच्छा ये सिनेरियो क्या रहा है. सेकंड सिनेरियो जो है वो एंड के साथ प्रॉपर एग्जांपल दी गई है. इसके अंदर ये है कि गिवन आई हैव लॉग्ड इन एंड आई हैव टू एक्सेस टू द क्रिएट यूजर ऐप एंड आई एम ऑन क्रिएट न्यू यूजर पेज. व्हेन आई डू नॉट फिल द ईमेल and I insert all the other user information and click on save button, then error message to display. So major इसके अंदर चीज ये नोट करने के लिए है कि and यूज करने की वजह से आपका जो टेस्ट केस है काफी स्ट्रक्चर्ड हो गया इंस्टेड ऑफ आप when बार बार लगाया. Why we are discussing these feature file structure here? Because
it has closely coupled with the code. अगर आपकी फीचर फाइल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब रीडेबल नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मैसी होंगी, तो सिमिलरली आपका ये इम्पैक्ट कोड के ऊपर करेगा, क्योंकि कुकम्बर के अंदर हर स्टेप डेफिनेशन की बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई कोड लिखा होता है. So that's why it is important to structure all your scenarios in feature file. So that was the first. Sorry. Yes, please. First of all, I really like the picture of Drake that you applied over here. It looks Thank you. Really interacting. Secondly, relating to the scenario that you have mentioned in the second picture, like as a second example. So that's really true that we should be using and but in case of using given and when again and again. But I was also reading an article on internet saying that we should kind of avoid these as well. Like a given should have like 1 or 2 scenarios instead of like multiple ones. If like it is like if you have to put on like a lot of cases in the given part and the when part, you can break them down in multiple test cases instead of writing the whole details over there. So what do you say in that? What is your opinion? अच्छा, जो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको दी गई हैं ना, स्ट्रक्चर्ड करने के लिए गई हैं, प्रॉपरली बताई गई हैं, ठीक है. आप अपनी उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं गिवन मैन के साथ, लेकिन देयर आर मतलब आपके सामने एग्जांपल है कि अगर आप इस चीज़ को इसी तरह से देखेंगे विदाउट यूजिंग एंड, तो वो वाली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करेगी, ठीक है ना. और ये कीवर्ड्स दिए ही कुकम्बर ने यूज़ करने के लिए, तो आई थिंक वी शुड यूज दीज कीवर्ड्स एंड मेंटेन आवर टेस्ट केसेस बाय यूजिंग ऑल ऑफ देम इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन 2 or 3. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है. बेसिकली instead of using given with multiple ands, we should, like, this is what I read, we should just break it down into multiple test cases instead of writing the whole detail over here. वो तो ठीक है कि and और but use होना चाहिए. अच्छा, वो आपको ये वाली चीज जो है ना नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके होपफुली ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये एज ए प्री कंडीशन ले रहा है. अगर आप इसको मल्टीपल सिनेरियोस में कन्वर्ट करोगे तो क्यों नहीं करने चाहिए, वो आपको होपफुली नेक्स्ट में आंसर होगा. अगर स्टिल ना आंसर हो, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन द एंड. ओके, ग्रेट, थैंक यू. So the next is use background instead of repeating steps. नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग के पास प्री कंडीशंस होती हैं, आपके टेस्ट केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्री कंडीशंस होती हैं, ठीक है. और जो फर्स्ट अप्रोच नॉर्मली क्यूएस यूज़ करते हैं, वो जस्ट गिवन के साथ उस प्री कंडीशंस को यूज़ करने लग जाते हैं और अपने हर सिनेरियो के अंदर वो चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है. So it's good practice to use background instead of just writing one step def again and again in each scenario. Why? Again, the reason is the scenarios will be more readable and you can easily maintain that. I will come back to this question once we will see the example related to this. So here is example. This is the example in which we have, you can say, without background, and this example is with background. In without background, there are the 2 scenarios. One is success message, the other one is invalid scenario, right? And here it is written that given I have logged in and I have access to the create user app, these all 3 tests are the repeating steps in the second as well. Given I have logged in and I have access to the create user application and I am on the create new user page. So these 2 scenarios are repeating 3 steps in each, you can say, scenario. So what we suggest here, we should take all these 3 steps to the background step like this. You can write background here. Cucumber gives the facility that you can use background word in that, and any dependency, any you can say preconditions that are using at feature level in all the scenarios, you should write that in the background. Normally क्या होता है, sometimes आप कुछ इस तरह की सिचुएशन में होते हो कि आपको अपने डाटा प्रिपेयर करना पड़ता है, पहले वो वाली चीज़ आप बैकग्राउंड में कर सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली इस एग्जांपल के अंदर लॉगिन बताया हुआ है कि लॉगिन जो है वो आपकी
हर दफा एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होगा तभी आप कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो सारे स्टेप्स आप अगर बैकग्राउंड में ले जाएंगे ना तो ये ज्यादा रीडेबल होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फॉर? Okay, so I will come back to the question here. I think many of you have started working in the automation scripts. So you have heard about hooks. Usually hooks का थोड़ा सा बता दूं कि hooks भी यही perform करता है जिस तरह background की functionality है. So anyone can tell me the difference between hooks and background? Any guess? If someone do not have knowledge about it. No one? Yeah, Mariam. Yes. Yes, so hooks are something like before and after that we use in JUnit, and background is executed before every scenario in a feature file. But hooks we can mention at different levels, like before feature or before scenario, and after scenario, after feature, things like functions like that. Yeah, you are close to that. That's the difference between both. ये functionality आपने basically दोनों की बताई है, लेकिन difference दोनों में ये है कि functionality तो दोनों देखें, आप अपना काम जो है precondition hooks के through भी कर सकते हैं, लेकिन why we are not using hooks here in Cucumber? क्योंकि background का major जो function है ना वो आपको मतलब एक step proper बताता है कि अच्छा इससे पहले ये वाली preconditions जो थी ना ये चलानी है, जो कि सबको पता चलता है, सब यूजर्स जो उसको रीडेबल होता है उस चीज के, इससे पहले ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है। जो हुक्स है ना उसके मेथड्स नॉर्मली शो नहीं होते, ठीक है, वो जस्ट आपने अपने कोड में लगाए होते हैं कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली किस लिए यूज होता है, ब्राउजर इनिशियलाइज करने के लिए, उससे पहले थोड़ा सा डाटा प्रिपेयर करने के लिए, इस टाइप की चीजों के लिए नॉर्मली हुक्स यूज करते हैं। जबकि बैकग्राउंड जो है ना वो आपकी प्री कंडीशंस को बताने के लिए यूज होता है, जो कि आपको Cucumber में अपने टेस्ट केसेस के अंदर यूज करें। दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, लेकिन आप इन फंक्शनैलिटी दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं एक तरह से। थैंक यू जानजेब, आई थिंक दैट वाज जानजेब। अच्छा, जो भी कोई क्वेश्चन करे काइंडली अपना नाम जरूर बताएं, मुझे सेशन के टाइम पता नहीं चलता। आई गेस दैट वाज जानजेब एग्जांपल, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट एग्जांपल। अच्छा, नेक्स्ट वन इज यूजेज ऑफ सिनेरियो आउटलाइन। Normally scenario, there are two things in Cucumber. One is scenario and other one is scenario outline. Scenario outline जो है ना वो normally use होता है जब आपको लग रहा हो आपका एक scenario जो है ना वो multiple times same steps repeat कर रहा है, ठीक है, और उस केस के अंदर हम लोग उसको scenario outline combination में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि same reason, हर एक की वही चीज़ है, easy to maintain and readability improve करता है। लेकिन मेजर जो है ना इसका फायदा क्या सिनेरियो आउटलाइन का, आपने अगर 4-5 टेस्ट केसेस लिखे हैं ना तो वो अगर कोई चेंज आता है तो आप यू हैव टू डू दैट चेंज इन ऑल 4 and 5 टेस्ट केसेस इंस्टेड ऑफ डूइंग इट एट वन प्लेस। सो सिनेरियो आउटलाइन जो है ना आपको एक फंक्शनैलिटी ये दे देता है कि आपका एक ही टेस्ट है जो कि मल्टीपल चीजें परफॉर्म कर रहा है, और आप उस चीज को इजीली एक जगह पे ही अपडेट कर दो तो वो क्या कहते हैं उस चीज को फुलफिल कर देता है। I will share example here again. The first example is आप just assume करें कि we have a calculator sum operation, हमने उस चीज को टेस्ट करना है, ठीक है। For example अगर कोई भी मैं किसी भी QA से क्वेश्चन करूँ तो वो मुझे 4-5 सिनेरियोज बताएगा, हम we will test sum, subtraction, multiplication and division, ठीक है। और डेफिनेटली फर्स्ट उनकी अटेम्प्ट यही होगी कि मतलब नॉर्मली नहीं पता लगता स्टार्टिंग में, आप क्या करते हो, आप इसके 5-6 सिनेरियोज लिख देते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब जिस तरह इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि फर्स्ट सिनेरियो जो है ना वो आपको सम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, सेकंड सिनेरियो सब्ट्रैक्शन कर रहा है, थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। अब इसमें सिनेरियो आउटलाइन से अगर आप इस चीज को करते हैं ना, आप उस चीज को देखें कि उसने कितने स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है कि गिवन आई एम ऑन द कैलकुलेटर व्हेन आई प्रेस द नंबर एंड ही इज टेकिंग नंबर फ्रॉम हियर, he has draw a table number 1, number 2, और अगर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसने ऑपरेशन को एज ए पैरामीटर ले लिया है और उसके अंदर ऑपरेशन बता दिए, अगर सम है और उसका सम जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो क्या है कि आपके 5 टेस्ट केसेस विद जस्ट 1 के अंदर कवर हो गए। क्यों? क्योंकि उन सबके स्टेप डेफिनेशन सेम थी, सबके चीजें सेम थी जो कि एक के अंदर मर्ज हो सकते थे। उस चीज को सिनेरियो आउटलाइन ने उस चीज को इस तरह से दिया।
नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल दूं, हम लोग के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे डिफरेंट हो रहे हैं, सब नॉर्मली एपीआईज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने वो चीज़ देखी होगी हेडर्स वगैरह समटाइम्स फंक्शनलिटी सेम होती है, जस्ट हेडर्स डिफरेंट होते हैं। तो उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्लाइंट्स डिफरेंट होते हैं। क्लाइंट्स को आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 फीचर्स फाइल सेपरेटली फॉर 2 डिफरेंट क्लाइंट्स जो कि सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस चीज़ को सिनेरियो आउटलाइन से भी कर सकते हैं कि आप उसके अंदर क्लाइंट नेम दें और उस चीज़ को रन करें इजीली, आपका सेम सिनेरियो 2 डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए यूज हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिनेरियो आउटलाइन। नेक्स्ट वन इज मेक योर सिनेरियो फीचर इंडिपेंडेंट। नॉर्मली ये वैसे ओवरऑल सिर्फ घर की या कुकम्बर के अंदर ये सिर्फ चीज़ नहीं है, ये ओवरऑल ऑटोमेशन के अंदर होता है। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में आपके जो कोई भी फंक्शन है ना, इवन अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सिनेरियो ऑलवेज शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। उसकी एग्जांपल अगर मैं थोड़ी सी आपको दूं तो समटाइम्स अगर आप एक अपडेट फंक्शनैलिटी की बात करें, नॉर्मली हमारी अप्रोच होती है हम अपडेट के लिए ना डिपेंडेंट कर देते हैं, अच्छा फर्स्ट यूजर ऐड होगा तो उसके बाद अपडेट होगा। वो वाली चीज़ हम डिपेंडेंट कर देते हैं उस टेस्ट केस के ऊपर, जो कि मतलब अवॉइड करनी चाहिए अपने टेस्ट स्क्रिप्ट्स के अंदर। और सेकंड उसको मतलब उसको करने का मेथड ये कि ऑलवेज प्रिपेयर योर डेटा बिफोर परफॉर्मिंग एनी सिनेरियो। तो उसी तरीके से आपके टेस्ट केसेस या फीचर फाइल्स, अगर कुकम्बर के केस में बात करें, फीचर फाइल्स इंडिपेंडेंट होंगी। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें जो हैं वो है एवरी सिनेरियो शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट अलोन। हम सिनेरियोज को एग्जीक्यूट कर सके, सिंगल सिनेरियो को करना है, और मल्टीपल सिनेरियोज को एग्जीक्यूट कर सकें, तो ये दोनों फीचर फाइल को एग्जीक्यूट कर सकें। तो सेपरेटली दोनों को एग्जीक्यूट करने की ऑप्शन होनी चाहिए, आपकी इंटरडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर कि फर्स्ट दैट फीचर फाइल विल रन तो फिर मेरी ये वाली फीचर फाइल वर्क करेगी इसके अंदर। अगेन इसके अंदर क्या बेनिफिट है, रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, मेंटेबिलिटी होती है। ये दोनों चीज़ें ओवरऑल ही इसके अराउंड सारी डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, मेक योर स्टेप्स इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट। इसी के ऊपर मैं आपको एक बैड एग्जांपल दूंगी, ठीक है। सिनेरियो इज गिवन आई लॉग इन एज अ यूजर 1 व्हेन आई ऐड ऑन द यूजर 1 अकाउंट। सिंपली ये इसके अंदर क्या कर रहा है कि ये होम पेज के ऊपर जा रहा है अकाउंट के ऊपर क्लिक करके, ठीक है। और सेकंड सिनेरियो इसके अंदर लिख दिया कि अकाउंट पे क्लिक करो और देन आप अकाउंट नंबर आपको विजिबल होगा। नॉर्मली क्या होता है कि 2 सिनेरियोज में लिख दिया गया है, लेकिन आपकी ये चीज, ये सिनेरियो, दिस वन सिनेरियो इज डिपेंडेंट ऑन दिस केसेस कि फर्स्ट ये सिनेरियो रन होगा देन दिस सिनेरियो विल एग्जीक्यूट, ठीक है ना। तो ये वाली चीज अपने सिनेरियोज में कभी भी नहीं करनी, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज को देखेंगे, कोई चीज डिपेंडेंट तो नहीं बन रही। आप इसको बेटर वे में कैसे लिख सकते थे? बेटर वे में ये है कि आप इन दोनों को मर्ज करके 1 कंसीडर करें और उसके अंदर अपनी असर्शंस अप्लाई करें, ठीक है। ये एक बेटर वे हो सकता है। बेस्ट वे क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? हमने वैसे इसी स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया है बेस्ट वे करने का वे। गेस कर दें, कोई बात नहीं। By using hooks. बैकग्राउंड आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे, कौन था? अच्छा, खैर जो भी था, आप करीब करीब है जिसने हुक्स का कहा है। सेकंड वन किसी ने कुछ कहा था, मैंने कहा था बैकग्राउंड का यूज करना। यस रिजवान, यू आर राइट। द बेस्ट वे टू डू इज, क्योंकि हम कुकम्बर की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट वन था वो क्लोज थे, क्योंकि हुक्स जो है वो नॉर्मली, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी, हुक्स जो है ब्राउजर मतलब इनिशियलाइज करवाने के लिए होती है और इस तरह की चीज़ों के लिए। लेकिन हम क्योंकि कुकम्बर की बात करें इसलिए वी विल यूज बैकग्राउंड टू डू दिस इन द बेस्ट वे। सो next best practice is we should write more declarative and less imperative scenarios. इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि sometimes जब भी आप स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ केस, show success message when creating a new user and given I am click on user name। अब एंड करके उसके अंदर आपने हर फील्ड का दे दिया कि फिल इन नेम इंफॉर्मेशन, ईमेल डाल दें, पासवर्ड डाल दें, सिटी। अब अगर इस चीज को आप देखें तो ये वाली चीज, एक तो आप देखें सबसे बड़ी बात, पासवर्ड कभी भी आपकी फीचर फाइल्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन, समटाइम्स आप मे बी मतलब कार्ड्स आपको यूज करने पड़े, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है ना, वो कभी भी आपकी फीचर फाइल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब वो
उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली पासवर्ड का यही चीज है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टिल इस एग्जांपल के अंदर वो बताया कि बहुत डिटेल्ड एक्स्ट्रा डिटेल में चले गए और उसके ऊपर सबमिट किया है और देन आई शुड सी अ यूजर सेव्ड बटन, राइट। तो उसमें ये है कि उस चीज को हम अच्छे वे में किस तरह से लिख सकते थे। आप सिंपल कहते गिवन आई एम ऑन द क्रिएट यूजर ऐप, व्हेन आई फिल यूजर इंफॉर्मेशन एंड आई क्लिक ऑन सबमिट बटन और सक्सेसफुली यूजर सेव हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर किसी का सो फॉर कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर? सॉरी, लेट मी गो बैक। किसी का इसमें कोई क्वेश्चन? असद है मरियम। सो ये जो एग्जांपल आप दे रही हैं, व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग एपीआई ऑटोमेशन इन आवर प्रोजेक्ट, हम भी कुछ इसी तरह की चीज़ कर रहे हैं कि हम लाइक एपीआईज के डिफरेंट पैरामीटर्स को फॉर एग्जांपल फिल आउट करने के लिए या हम में भी एंड के साथ डिफरेंट वैल्यूज ऐड करवाते हैं, या में भी हम चाहे एक ही सिनेरियो के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को मेंशन करके समटाइम्स हमें इंफॉर्मेशन, एक तो आपने एग्जांपल दी कि पासवर्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सिक्योर होनी चाहिए वो फीचर फाइल में नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम ऐसा करते हैं कि हम हमारी फीचर फाइल एक सोर्स होती है टेस्ट डाटा का जो हमें प्रोवाइड करती है, हम उसको वैलिडेट करते हैं। समटाइम स्पेशली इन द केस ऑफ असर्शन, जब हम देन के बाद एंड लगाते हैं और देन की चीज़ें वेरीफाई करते हैं, उस केस में बहुत सारी वैल्यूज जो की वैल्यूज जो होती हैं वो इस जगह से फीचर फाइल से पास करते हैं और स्टेप डेफिनेशन में या सर्विसेज क्लासेस में जाके उसको वेरीफाई करते हैं। तो आप तो सम टाइम हम इसको एज अ सोर्स यूज कर रहे होते हैं फॉर डाटा और सम की वैल्यूज। तो क्या ये प्रैक्टिस टोटली रॉन्ग है कि हमें यहाँ से कोई डाटा लेना नहीं चाहिए या की वैल्यूज उठानी नहीं चाहिए रीड करने के लिए? आप इस पे क्या कहते हैं? अच्छा असद, इसके ऊपर ये है कि ये रॉन्ग नहीं है पैरामीटराइजेशन। आपको केसेस के अकॉर्डिंग खुद से स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है कि फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आप डिफरेंट आइटम्स का डाटा ले रहे हैं कि ये आइटम्स मैंने परचेज करनी है, आप उन आइटम्स के यूपीसीज भी दे सकते हैं इसके अंदर, आप और इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। पिछले मैंने कैलकुलेटर की भी एग्जांपल दी, मतलब इसके अंदर नेम भी आ सकता था, ईमेल भी आ सकता था, लेकिन पॉइंट इसके अंदर ये कि आपको स्मार्ट अप्रोच उसके अंदर यूज करनी है कि जहाँ पे रिक्वायर्ड है ना पैरामीटराइजेशन, सिर्फ वहीं पे यूज करें। एक्स्ट्रा हर चीज के अंदर आप मतलब अपना सोर्स बना के उस चीज को आप वो ना करें, क्योंकि जो जिस तरह क्रेडिट कार्ड और इस टाइप की इंफॉर्मेशन मैं कह रही हूँ, आप अपने कोड लेवल पे जाके करें, उस चीज को कोड लेवल पे लेके आए। फीचर फाइल से जस्ट आप ये स्टेप शो कर सकते हैं व्हेन यूजर you can say perform credit purchase payment, credit payment, तो वो वाली चीज आपकी बैकएंड पे क्या चल रहा होगा, बैकएंड पे आप उसका क्रेडिट कार्ड भी ले रहे होंगे कोड के अंदर उस चीज को लेके आए। तो ये हरगिज इसके अंदर ये नहीं कह रहे कि आपने पैरामीटराइजेशन यूज नहीं करनी, लेकिन पर्पस इस स्लाइड का ओवरऑल ये है कि आप स्मार्ट वे में चीजों को करें। दोनों एग्जांपल्स इसलिए दी हैं कि दोनों चीजों को माइंड में रखें, ठीक है। अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्मार्ट अप्रोचेस यूज करनी है उसके अंदर। ये मतलब ओवरऑल आपके उसके ऊपर हरगिज ये नहीं है कि आप पैरामीटराइजेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना? सही है, सही हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट उसी में नेक्स्ट लास्ट को ही फर्दर कंटिन्यू किया है कि डिक्लेरेटिव सिनेरियो शुड बी अंडरस्टैंडेबल, क्लियर वैलिडेशन होनी चाहिए। क्लियर वैलिडेशन होती है इस वजह से। अच्छा, वैसे यहाँ पे मोर जेनेरिक एग्जांपल दिए, लेकिन मैं इस जेनेरिक एग्जांपल को इतना बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है, बहुत ज्यादा जेनेरिक हो जाती है। गिवन आई हैव लॉग्ड इन, व्हेन आई फिल ऑल द इंफॉर्मेशन देन आई शुड सी ए मैसेज। तो ये वाली चीज भी नहीं हो जानी चाहिए कि भाई आपकी एग्जांपल इतनी जेनेरिक हो गई है कि किसी को पता नहीं चल रहा। तो मिडल वे यूज करना है डेफिनेटली, जिस तरह मैंने पीछे बताया कि स्मार्ट अप्रोच थोड़ी यूज करें, मतलब बहुत ज्यादा भी जेनेरिक ना कर दे कि अच्छा जी ये तो हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस में देखा था कि जेनेरिक होना चाहिए। मतलब अपनी उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि सिनेरियो क्या क्या है और किस तरह से हमने उसको कोड में लेके जाना है। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंसीडर यूजिंग टैग्स। बाय द वे, किसी ने टैग्स यूज किए हैं अगर कोई कुकम्बर पे ऑलरेडी काम कर रहा है? जी गुड, नाइस। अच्छा जी, टैग्स क्यों यूज करते हैं? टैग्स आर द एनोटेशंस दैट सर्व टू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज सिनेरियोज एंड इवन फीचर्स फाइल। टैग किस तरह के होते हैं ये आप खुद से भी डिफाइन, मतलब खुद ही से डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी एक फीचर फाइल है जो कि यूआई के रिलेटेड सारे सिनेरियोज, जिसके अंदर सारे सिनेरियोज यूआई से रिलेटेड है, आप उनके ऊपर फीचर लेवल पे उसके ऊपर @GUI का टैग लगा सकते हैं, जो कि आपको
मतलब जब आपने टेस्टिंग करनी हो आपको मेंटेन करने में इजी होगा। अच्छा मेरी यूआई की चेंजेस है तो मैं अपनी यूआई की फीचर फाइल बस चला देता हूँ, बाकी सारी चीजें जो है वो इतना मतलब रिग्रेशन करने में इजी होगा इस टैग्स को यूज करने के लिए। इसी तरह सिनेरियो लेवल पे आप टैग्स अप्लाई कर सकते हैं, आप फीचर लेवल पे कर सकते हैं। एग्जांपल दी हुई है, ये सिनेरियो लेवल पे टैग है और इसके ऊपर 2 टैग्स लगे हैं, एट स्मोक टेस्ट एंड एट WIP। WIP जो होता है नॉर्मली यूज होता है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। समटाइम्स आप एक फीचर फाइल के ऊपर काम कर रहे हो और आपके 8 सिनेरियोज कंप्लीट हो चुके हैं और सिर्फ एक सिनेरियो रहता है ड्यू टू सम XYZ रीजन जो कि ब्लॉक हो गया, ठीक है। आप उसकी वजह से अपना कंप्लीट फीचर नहीं रोक सकते कि भाई मेरा कंप्लीट फीचर अभी रेडी नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आपके 8 सिनेरियोज चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो नॉर्मली उस अप्रोच में आपको WIP टैग लगा के उस सिनेरियो को पुश कर देना चाहिए। WIP टैग मीन्स के वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। आगे मैं फर्दर बताऊंगी एग्जीक्यूशन के अंदर कि किस तरह हम इसको यूज करेंगे कि WIP टैग्स वाले जो टेस्ट हैं वो ना चलें। सिमिलरली ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है रिग्रेशन टेस्ट के, ये भी सिनेरियो लेवल पे अप्लाई हुआ है। तो हम लोग के जो खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं एनोटेशंस ये वाली आप अपने सिनेरियोज और फीचर्स को मेंटेन करने के लिए। हाउ टू कॉन्फ़िगर टैग्स। नॉर्मली जो कुकम्बर जो है ना ऑप्शंस देता है कि यू कैन यूज एड कुकम्बर ऑप्शंस and add your tags for the execution. For example, add in cucumber options, here's the command says tags is equal to add smoke test. ये क्या करेगा, execute all scenarios under the smoke test. Similarly, tags at GUI, ये जितने टेस्ट केसेस हैं जो GUI लेवल के ऊपर जिनके ऊपर टैग लगा, इवन चाहे वो फीचर फाइल पे लगा हुआ है चाहे वो सिनेरियो लेवल पे लगा, ये उन सब केसेस को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है टैग्स इज इक्वल टू एट रिग्रेशन एंड नॉट एट स्मोक। तो एट स्मोक जो है ये जो साइन है ना नॉट का, ये कहता है कि रन ओनली दोस सिनेरियोज व्हिच हैव रिग्रेशन टेस्ट एंड एक्सक्लूड ऑल सिनेरियोज व्हिच हैव स्मोक टेस्ट टैग। तो ये आप अपनी एग्जीक्यूशन को बेसिकली टैग्स अपनी एग्जीक्यूशन को मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आपकी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि जी कोई बता सकता है टैग्स इज इक्वल टू एट GUI नॉट एट स्मोक टेस्ट एट नॉट एट रिग्रेशन टेस्ट, इसका क्या रिजल्ट होगा, कौन से टेस्ट चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे? एनीवन? स्किपिंग ऑल रिग्रेशन एंड स्मोक टेस्ट और एग्जीक्यूट करना है GUI के टेस्ट को। अच्छा व्हाट इफ अगर 2 सिनेरियोज के ऊपर एक के ऊपर एट GUI भी लगा हुआ है और एट स्मोक भी लगा हुआ है, तो उस टेस्ट को चला देगा या उस टेस्ट को इग्नोर मार्क कर देगा? आई गेस एक्सक्लूड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इग्नोर मार्क। अच्छा इसकी ना मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल इसको ट्विस्ट करके भी देती हूँ। नॉर्मली QA एग्जीक्यूशन मेंटेन करते हैं सारी, ठीक है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स की, और ये इट्स नॉट गुड अप्रोच कि आपके टेस्ट केसेस इवन वो उसके अंदर बग्स जो हैं बग्स की वजह से फेल हो रहे हो, इवन वो आपके नॉन बग्स ही क्यों ना हो, जीरा के अंदर लॉग क्यों ना हो, लेकिन आपकी रिपोर्ट के अंदर वो फेल हो रहे हैं। उन केसेस के ऊपर आप लोग नॉर्मली क्या होता है अप्रोच कि आप उसके ऊपर ऐड बग का टैग लगा देते हैं, ठीक है, और जब आप अपनी कुकम्बर ऑप्शंस देते हैं ना उसके अंदर आप कहते हो एग्जीक्यूट ऑल द टेस्ट एक्सेप्ट बग टैग, तो वो क्या करता है जितने बग टैग्स होते हैं ना उन सबको एक्सक्लूड कर देता है और बाकी को इंक्लूड करके वो चीजें चला देता है। ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी देखिए एवरीवन इज यूजिंग CI/CD मे बी आई थिंक CI/CD इन देयर प्रोजेक्ट। आपकी हर PR के ऊपर आपके टेस्ट केसेस में चलना है, रिग्रेशन सूट चलना है। अब हर टेस्ट के ऊपर रिपोर्ट जनरेट हो रही है कि जी ये वाला जो बग है ना ये फेल हो रहा है, ये टेस्ट केस फेल हो रहा है। QA से पूछा था तो कहते ये तो नॉन है, जीरा के अंदर डला है, लेकिन आपकी वो चीज वर्थ नहीं रखती उस चीज की, जब तक आपकी ग्रीन पाइपलाइन नहीं ना होती वो फुलफिल नहीं करती उस चीज को। तो यू शुड ऑलवेज मार्क एट बग टैग फॉर ऑल दोस टेस्ट जिसका आपको पता है कि ये नॉन केसेस हैं, और आप अपनी कुकम्बर ऑप्शंस के अंदर उसके अकॉर्डिंग टैग्स की कमांड दें और उस चीज को एग्जीक्यूट करें, तो वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी।
Acha ji, this is example. Here I have shown that how we can add tags. This is added in the scenario level, at scenario level, at basic underscore user, and at create underscore user, and at WIP. ये जो है आपका फीचर लेवल पे लगा हुआ है. तो अच्छा, ये WIP लगा, ये फीचर फाइल चल जाएगी? क्वेश्चन है. Will this feature file run or Janzeb, Rizwan, Asad, इसके ऊपर 2 टैग्स लगे हैं. मैंने कहा इसके ऊपर add WIP का टैग लगा है. add WIP means work in progress. तो क्या ये फीचर फाइल रन होगी आपकी एग्जीक्यूशन में या नहीं होगी? कुकम्बर ऑप्शन में टैग्स क्या है बेसिकली? वो टैग्स पे डिपेंड करता है. हाँ, तो टैग्स वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? आपकी वो कोड तो नॉट ही होना चाहिए. हर कुकम्बर ऑप्शन पे WIP और ऐड बग टैग ऑलवेज नॉट होना चाहिए, ताकि आप इस चीज को यूज. क्रिएट यूजर्स का अगर लगा हुआ है तो फिर चल जाएगा. नहीं चलेगा. क्योंकि वो नहीं चलेगा. क्रिएट यूजर्स है, लेकिन WIP वाला जो है वो नॉट हुआ है, तो मेरे ख्याल से नहीं चलेगा. हाँ जी, डेफिनेटली नहीं चलेगा. एट WIP का मतलब ही ये है कि वर्क इन प्रोग्रेस. तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि जोन सी फीचर फाइल इन प्रोग्रेस है आपने उसके ऊपर ही लगाना, अदरवाइज वैसे ही नहीं लगाना. मतलब टैग्स भी मीनिंगफुल होते हैं, मतलब जस्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है. या एड बग टैग होता है, WIP टैग होता है. मेक योर स्टेप्स मॉड्यूलर. उसके अंदर रूल 1 क्या है? अगर कोई रूल 1 ये है कि आपने ये 2 स्टेप्स दे लिखे हैं जी. गिवन आई क्लिक ऑन साइन इन लिंक ऑन होम पेज, व्हेन आई क्लिक ऑन रजिस्टर बटन ऑन साइन इन पेज, आपके ये 2 स्टेप्स जो है वो 2 डिफरेंट फंक्शंस पीछे कोड के क्रिएट करेंगे. ठीक है. अगर आप यही चीज इसको इस तरह से लिखते हैं, व्हेन आई क्लिक ऑन समथिंग ऑन द समवेयर पेज, अब आपका 1 सिनेरियो जो है 1 स्टेप डेफिनेशन इज यूजिंग दी, मतलब ये दोनों चीजें इस 1 स्टेप डेफिनेशन को यूज कर सकती हैं. आपने इस चीज को पैरामीटराइज कर दिया, उस चीज को मतलब कम कर दिया उस चीज को कि जहाँ पे रिडंडेंसी आ रही है, आप इसके अंदर देखें बहुत ज्यादा रिडंडेंसी है. तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए यू शुड ऑलवेज राइट योर स्टेप डेफ लाइक दिस. दिस इज द फर्स्ट रूल. एंड सेकंड रूल क्या है कि नॉर्मली लोअर केस रिकमेंडेड है. आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए. अगर आपने 1C कैपिटल लिख दिया है एंड 1C स्मॉल लिख दिया है, उसके अंदर क्या करेगा वो इन दोनों के डिफरेंट स्टेप डेप्थ कंसीडर करेगा और वो क्या करेगा कि मतलब अलग अलग चलाएगा और आपको कहेगा इसके पीछे अलग कोड करें. तो सेकंड रूल क्या है? आपके लोअर केस रिकमेंडेड है, लेकिन आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए उसका टेक्स्ट. सिमिलरली थर्ड वन इज कीप टेबल कंसिस्टेंट. जो टेबल है, जो सिनेरियो आउटलाइन के अंदर मैंने अपनी सेकंड या थर्ड स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है, उसके अंदर क्या है कि आपकी ये वाली चीज है ना, ये आपकी लोअर केस में होनी चाहिए और अंडरस्कोर सेपरेटेड होनी चाहिए. ठीक है. तो ये भी कंसिस्टेंट होने चाहिए. ये नहीं करना कि किसी एक फीचर फाइल में लिखा हुआ है एरर कैपिटल में और एक्सपेक्टेड टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस तरह की चीजें. तो आपकी सारी ये मेंटेन होनी चाहिए. दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस के एक कंसिस्टेंट होनी चाहिए. So these were all the practices related to Cucumber, specific to Cucumber. So for किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है आपके कोड के साथ. सिंपली मैं बार बार इस चीज़ पे इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी कोड की रिडंडेंसी जो है ना वो दैट्स मतलब वो आपको शायद सिनेरियो से लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, हम इसको क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट करता है आपके कोड के ऊपर. सिनेरियो रिडंडेंट होंगे तो आपके कोड रिडंडेंट होगा. We are good till now. चलें जी, आगे चलते हैं. अच्छा जी, these are the general test practices that we should follow in automation script. ये कोई Cucumber से related नहीं है. ये general test practices हैं. उसमें first one क्या है? Assertions and validations. Normally में जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो API के अंदर काम कर रहे हैं, तो API के अंदर आप इसको थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि अगर आपकी एक सिंगल स्टेप डेफिनेशन है ना, वो उसके अंदर 2-3 कोड
एजर्ट हो रहे हैं ना, दैट मीन्स वो मल्टीपल सिनेरियो बना सकती है। आपने एक के अंदर नहीं उस चीज को एंटर करना कि मैं एक ही के अंदर 2-3 चीजें वेरीफाई कर लूँ। उस चीज का आपको डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको अपने सिनेरियो की पता नहीं चलेगा कि किस लेवल पे जाके वो फेल हुआ था। आपने 2-3 मतलब उसके अंदर एजर्शंस अपने स्टेटस कोड डाले हुए हैं, ठीक है, किस स्टेप के ऊपर फेल हुआ था, वो एक तरह से आपने डिपेंडेंट कर देते हैं आप एक दूसरे के ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि आपके सिनेरियो के अंदर एजर्शंस बन रही है मल्टीपल स्टेटस कोड की, स्टेटस कोड से मतलब ये है कि मैं एपीआईज के स्कोप में बात कर रही हूँ, नॉट इन यू कैन से वेब एप्लीकेशंस, तो उसमें ये है कि मल्टीपल स्टेटस कोड में आप उसके 2 डिफरेंट टेस्ट स्टेप बनाएंगे, ठीक है, एक के अंदर नहीं उस चीज को करना। तो ये तो एक नॉर्मल बेसिक जो है ना वो है बेस्ट प्रैक्टिस जो आपके अपने कोड के अंदर अपने कुकम्बर के अंदर फॉलो करनी चाहिए और कोड में भी करनी चाहिए। सेकंड ये है कि एक्सेप्शन कैचिंग विद जनरल मैसेज। हम लोग जो है नॉर्मली एक्सेप्शन कैच ही नहीं करते हैं, हम जस्ट क्या करते हैं कि अपनी असर्शंस अप्लाई की, टेस्ट पास हुआ, कभी भी मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा कि व्हाट इफ ड्यू टू सम XYZ एक्सेप्शन हमारा टेस्ट केस फेल हो जाता है, हम लोगों के वो स्टेप्स चलेंगे ही नहीं आगे से, तो वो क्या हमारी रिपोर्ट के अंदर क्या चीज शो होगी। वो एक्सेप्शन अगर किसी ने देखी हो, वो एक्सेप्शन बड़ी मतलब इस तरह की होती है कि आप उसको रीडेबल नहीं होती, बहुत ज्यादा तो आप अगेंस्ट अगर आपको उसको ट्राई कैच के साथ यूज करना चाहिए, हमेशा जहाँ पे भी असर्शंस लगा रहे हैं आप अपने उस कोड को ट्राई कैच में रखें, और कैच के अंदर जो आप एक जनरल मैसेज प्रिंट करवा दें जो आप उस टेस्ट सिनेरियो के अंदर वेरीफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एक चीज वेरीफाई कर रही हूँ कि एक आइटम है वो परचेज हो चुकी है, बट ड्यू टू सम XYZ रीजन ये वाली जो मेरी आइटम है ये एक्सेप्शन आ गई, इस स्टेप से पहले एक्सेप्शन आ गई, तो उसने ये वाली चीज लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं की। तो क्या होगा कि वो एक्सेप्शन कैच करे और उसके अगेंस्ट एक मैसेज प्रिंट करवा दे कि आइटम स्टेटस इज मिसिंग, मतलब परचेज स्टेटस मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये ट्रू होना चाहिए था, मैंने परचेज कर ली है, लेकिन ड्यू टू XYZ रीजन हमें वो चीज कैच करनी चाहिए। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एनीवन इज नॉट यूजिंग इन देयर कोड स्क्रिप्ट वो उस चीज को जरूर यूज करें इस चीज को। Next is scenarios, for example, related to calculations, boundary conditions should be covered in unit test. I think mostly QA test engineering community को याद होगा कि I have discussed this topic in test engineering meeting कि हमें जितने हमारे calculation से related scenarios हैं या बाउंड्री वैल्यू चेक है या एनालिसिस का बाउंड्री वैल्यू वाले सिनेरियोज हैं वो सारे हमें अपने यूनिट टेस्ट में कवर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वाली चीज वहां पे फुलफिल हो जाती है, अपनी फंक्शनैलिटी वहीं पे परफॉर्म कर लेते हैं। आप उसको इंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर सिर्फ उस एट्रीब्यूट की प्रेजेंस को आप अपने असर्शंस अप्लाई करें, ना कि उसकी वैल्यू के ऊपर लगाएं कि अच्छा कैलकुलेशन ये होनी चाहिए थी। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा सोचें थोड़ा बैक स्टेप पे जाके, तो डेवलपर भी जिसने यूनिट टेस्ट लिखा होता है वो उसने पीछे फॉर्मूला लगा के उस यूनिट टेस्ट का दिया होता है कि भाई इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ये निकलेगी, और वो टेस्ट करके उस चीज को आगे पास ऑन करता है। तो इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इंटीग्रेशन टेस्ट हैं जो कुकम्बर के अंदर लिखे जाते हैं, उसके अंदर आपको इस तरह के सिनेरियोज अवॉइड करने चाहिए, वो फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए ओवरऑल कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वाली जो वन एट्रीब्यूट रिलेटेड आपकी जो कैलकुलेशंस है ये यूनिट टेस्ट में भी कवर हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूज रेस्ट एश्योर्ड व्हेन सर्विस कॉल इज मेड। ये वाली जो चीज है ना, ये इट ऑल डिपेंड्स कि अगर इफ दिस इज एप्लीकेबल ऑन योर प्रोजेक्ट। अगर तो कोई अपने प्रोजेक्ट के अंदर रेस्ट एश्योर्ड नहीं यूज कर रहा तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो ये चीज करे, लेकिन ये जस्ट उनके लिए इफ एनीवन इज यूजिंग रेस्ट एश्योर्ड तो और नॉर्मली क्या होता है टेस्ट एनजी भी यूज कर रहे होते हैं क्योंकि टेस्ट एनजी आपको एनोटेशंस प्रोवाइड कर रही होती है और देयर जेसन असर्ट भी होता है। तो 2-3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उस चीज को कवर करने के लिए, लेकिन आपने जो सी लाइब्रेरी यूज की हुई है जो रेस्ट एपीआईज को करने के लिए उस चीज को मतलब उसी को यूज करना चाहिए अपनी असर्शंस के अंदर, बाकी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर तो आपने रेस्ट एश्योर्ड नहीं यूज की हुई देन यू कैन गो फॉर अदर असर्शंस। सो ये वाला जो पॉइंट है इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। Last but not the least, this point is most
important point. Log as much as details as you can. इसके अंदर क्या है कि जितनी आपके टेस्ट सिनेरियो चलते हैं ना, उसके अंदर फॉर एग्जांपल देयर आर 4 स्टेप्स इन योर सिनेरियो. फर्स्ट वन जो है उसके अंदर आपने जॉन सी रिक्वेस्ट सेंड की है, जॉन से हेडर्स पास किए हैं, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया है, उस सब चीज़ों के ना आपकी लॉग्स मेंटेन होने चाहिए. लॉग्स के अंदर क्या, एक तो आप ये है कि सिंपल आप अपने ना जो आपका टेस्ट रन होता है आप उसके अंदर लॉग्स वो जनरेट करवा लेते हैं कि वो उसके अंदर कंसोल के ऊपर प्रिंट हो रहे होते हैं. लेकिन जो इस चीज का पर्पस ये है ना कि इसके ऊपर के लॉग एज मच डिटेल्स एज यू कैन, इसकी मैं एग्जांपल आपको आगे से देती हूँ कि ये आपको लॉग करवाना चाहिए. आपको अपने ये कुकम्बर की रिपोर्ट है, दिस इज कुकम्बर रिपोर्ट. इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर मेरी जो रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट बॉडी जा रही थी, वो शो हो रही है. ठीक है, किस इन्वायरमेंट के ऊपर कॉल गई है वो शो हो रही है. इस डेफ के अगेंस्ट इवन कौन से हेडर्स गए हैं और इसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स है, ये पूरा इमेज नहीं है, इसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स है वो है. और ये वाली जो चीज़ है ना, ये हर स्टेप डेफ के अकॉर्डिंग शो हो रही होगी. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमने बहुत देर बाद जाके इस चीज़ को किया था. क्यों? क्योंकि अभी जब आप इस चीज़ को नहीं करते हो ना, आपका कोई सिनेरियो फेल हो जाता है. ठीक है, आप क्या करते हैं, आपको लोकली उसको रन करके उसको डीबग करके देखना पड़ता है क्या ये मेरा ऑटोमेशन का फेलियर था या क्या ये रिक्वायरमेंट चेंज की वजह से फेलियर था. तो वो चीज़ आपका टाइम ले लेती है. ठीक है, तो ऑलवेज लॉग एवरी इंफॉर्मेशन इन योर कुकम्बर रिपोर्ट. कोई भी उस चीज़ को देखे, इवन कोई क्यूए आपका अवेलेबल नहीं है, डेव उसको देखे, उस चीज़ को देखे, अच्छा ये तो इवन आप इसके अंदर देखें, हम लोग जो है ना उसके रिक्वेस्ट आईडीज भी प्रिंट कर रहे होते हैं कि किसी ने लॉग्स देखने हैं, किसी की स्प्लंक के ऊपर जाके देखने, डेवलपर को उस चीज़ की इजी रहता है, वो जस्ट वो पकड़ता है उस आईडी को और उसके अगेंस्ट लॉग्स देख लेता है. तो ये वाली चीज़ बहुत बेनिफिशियल है इन केस समटाइम्स आपके टेस्ट केस आप कहते हो अच्छा तब तो फेल हुआ था, मुझसे स्टेप नहीं प्रोड्यूस हो रहे. तो स्टेप प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो अगर आप अपनी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी प्रिंट करवा दोगे ना, तो वो उस केस के लिए आपके पास लॉग्स देखना ज़्यादा इजी होगा. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए. एंड दिस इज द लास्ट वन. आई होप ये आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा जितने भी लोग कुकम्बर यूज़ कर रहे हैं. So that's all from my side. Any questions, anyone that they want to ask? Anyone? No one? I think all good. सही हो गया. Thank you so much. अगर किसी के पास स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ वो मुझसे बाद में भी रीच आउट कर सकते हैं. अच्छा, आई थिंक आप कोई क्वेश्चन करने लगे थे, आपका माइक अनम्यूट हुआ था. नहीं, क्वेश्चन तो मैं कोई नहीं करने लगा था. आई वाज थिंकिंग सेशन बहुत अच्छा था. मेरा ख्याल में इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी. इवन मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस में से जो आपने डिस्कस की हैं फॉलो नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू फॉलो दोस. Good. Thank you so much. Thank you for the feedback, Asad. By the way, thank you Rizwan for turning on video. काफी उस चीज में वो मिल जाती है, इंटरेक्टिव हो जाता है. ऐसे ही बाकी पता नहीं डर क्यों रहे हैं. Thank you all for participating. Janzeeb, Sumayya, Asad, जिसने भी questioning की, thank you all. You can reach me offline as well. Okay. Allah Hafiz, everyone. Thank you for joining.